آج جو بات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ایسی بات ہے کہ سن کر آپ کا دل کانپ اٹھے گا، آپ کی روح لرز جائے گی اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کہیں ہم بھی تو وہ غلطی نہیں کر رہے جس کی سزا نسلوں تک چلی جاتی ہے۔ آج کا ہمارا بیان ہے کہ عورت کے 3 نازک حصے پر بوسہ دینے سے کیا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی بیوی کے جسم کے ان حصوں کو چھونے اور چومنے کی جرت کرتے ہیں جنہیں شریعت نے سختی سے منع فرمایا ہے، ان لوگوں کے لیے ایک ایسا انجام لکھا جا چکا ہے جو صرف دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی تباہی لے کر آئے گا۔ اگر ایسا کیا تو یاد رکھنا اللہ ناراض ہو جائے گا، اور جب اللہ ناراض ہو جائے گا تو اس کی رحمت کے فرشتے بھی ناراض ہو جائیں گے، اور جب رحمت کے فرشتے ناراض ہو جائیں گے تو رزق بانٹنے والے فرشتے بھی خفا ہو جائیں گے، اور جب رزق بانٹنے والے خفا ہو جائیں گے تو سمجھ لو پھر تم تو کیا، تمہاری نسل بھی تباہ ہو جائے گی، گھر کے اندر سے سکون ختم ہو جائے گا، بچوں کے نصیب سے برکت مٹ جائے گی، پریشانیاں تمہیں گھیر لیں گی اور شیطان تمہارے دل اور دماغ پر حاوی ہو جائے گا۔ یہ وہ راز ہے جو آج آپ کے سامنے کھلنے والا ہے، اور اس راز کو جان کر آپ چونک جائیں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، جب انسان اپنی حدوں کو پھالانگتا ہے، جب وہ نفس کی پکار کو رب کے احکام پر ترجیح دیتا ہے، جب وہ شرم اور حیا کی چادر کو روند کر ہوس کے اندھے کنویں میں گر جاتا ہے، تو یاد رکھو وہ اللہ کی ناراضگی مول لے لیتا ہے، اور جس پر اللہ ناراض ہو جائے اس پر نہ زمین کی برکت باقی رہتی ہے نہ آسمان کی رحمت اترتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بے شک اللہ بے حیائی کے کاموں کو پسند نہیں کرتا۔ معراج کی رات جب میرے نبی کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی تو کچھ ایسے لوگوں کو بھی دکھایا گیا جن کے چہروں پر آگ کے شعلے برس رہے تھے، ان کے جسم سڑ رہے تھے، چیخیں نکل رہی تھی۔ میرے نبی نے جب جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو جبرائیل نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے نفس کی پیروی کرتے رہے، جو اپنی بیویوں کے ساتھ وہ افعال کرتے رہے جنہیں اللہ نے منع فرمایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حلال کو چھوڑ کر حرام کی راہوں پر چل نکلے تھے۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج کا بیان بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ یہ بیان سن کر شاید آپ کی سوچ بدل جائے، یہ بیان سن کر شاید آپ کا دل کانپ جائے، اس لیے گزارش ہے کہ یہ بیان سنے بغیر مت جائیے گا، آخر تک سنیے گا، کیونکہ آج جو بات آپ کو بتانے والی ہوں وہ عام نہیں، وہ ایک ایسی حقیقت ہے جو شاید پہلے آپ نے کبھی نہ سنی ہو۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہاں پر میں تمہیں لوط علیہ السلام کی قوم کا ایک سبق آموز اور عبرتناک واقعہ سنانا ضروری سمجھتی ہوں، اور پھر اس کے بعد ہم اپنے آج کے عنوان کی طرف جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ اس قدر فحش کاموں میں لگ گئی تھی کہ جن کاموں پر فرشتے لعنت کرتے ہیں، مگر لوط علیہ السلام کی قوم نے وہ کام کھلم کھلا کرنا شروع کر دیے تھے۔ یہ لوگ ہوس کے پجاری بن چکے تھے جن کے دلوں سے حیا ختم ہو چکی تھی، اور جو اللہ کی بنائی ہوئی فطرت سے بغاوت پر اتر آئے تھے۔ یہ صرف عورتوں کو ہوس کا نشانہ نہیں بناتے تھے، بلکہ نوجوان لڑکوں کو بھی عورتوں کی جگہ استعمال کرتے تھے، ان سے لطف لیتے تھے، ان سے مزہ لیتے تھے، جس طرح ایک شوہر اپنی سہاگ رات بیوی سے لطف لیتا ہے، یہ ان معصوم لڑکوں کے ساتھ وہی شرمناک حرکتیں کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار سمجھایا، بار بار روکا، بار بار وارننگ دی، مگر وہ نہ سمجھے، نہ رکے، نہ پلٹے۔ اور پھر وہ دن آیا جب اللہ کے عذاب نے ان پر آخری فیصلہ سنا دیا۔ آسمان سے پتھروں کی بارش برسی، زمین ان کے قدموں تلے سے کھینچ لی گئی، ان کے خوبصورت گھر، ان کی آباد بستی، ان کی آسائشیں، سب کچھ پل بھر میں الٹ دی گئی۔ وہ بستی جو ایک دن رونق سے بھری ہوتی تھی وہ چیخوں سے گونجنے لگی، اور ان کی لاشیں زمین میں دفن ہو گئیں۔ اللہ کی لاری کتاب نے ان کے انجام کو قیامت تک کے لیے مثال بنا دیا۔ سوچو میرے بھائیوں، وہ قوم جو صرف اپنی ہوس کے پیچھے لگی رہی، جنہوں نے نفسانی خواہشات کو دین، فطرت اور انسانیت پر ترجیح دی، اللہ نے انہیں ایسا عبرتناک انجام دیا کہ آج تک ان کے کھنڈہرات پر قدم رکھنے والے کانپ جاتے ہیں۔ اے میرے بھائیوں،
जो कौम हवस के पुजारी बन जाए, जो बीवी की इज्जत को रौंद डाले, जो हया की चादर को फाड़ दे, जो निकाह के दायरे को भी नफ्स की भूख से आलूदा कर दे, वो फिर कभी बच नहीं सकती। अल्लाह का अजाब न सिर्फ उन पर बल्कि उनकी नस्लों पर भी उतरता है। ऐसे लोगों की दुआएं कबूल नहीं होती, उनकी जिंदगियों में सुकून नहीं आता, उनके घरों में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते और उनके रिज्क से बरकत छिन जाती है। वो जाहिरी तौर पर कुछ भी हो, अंदर से वीरान, खाली और बर्बाद हो चुके होते हैं। और ये सब कुछ क्यों होता है? सिर्फ एक गुनाह की वजह से, हदूद तोड़ने की वजह से, हवस के पुजारी बनने की वजह से और अल्लाह के अहकाम को मजाक समझने की वजह से। इसलिए ऐ मेरे भाइयों, होश करो, इबरत हासिल करो और लूत अलैहिस्सलाम की कौम के अंजाम से सबक सीखो मेरे इस्लामी भाइयों। अब चलते हैं हम अपने उन्वान की तरफ। आज का हमारा उन्वान है कि औरत के 3 नाजुक हिस्से पर बोसा देने वाले लोगों के साथ क्या होता है। मेरे भाइयों, किसी दानिश्वर ने कहा था कि बीवी एक ऐसा मेवा है जो खाए वो भी पछताए और जो न खाए वो भी पछताए। ये बात आज के दौर में पूरी सच्चाई के साथ साबित हो रही है। गौर करें, आज के नौजवान जो अभी कुंवारे हैं, उनका सबसे बड़ा ख्वाब यही है कि जल्दी शादी हो जाए ताकि बीवी के साथ लुत्फ उठा सके, मोहब्बत भरी जिंदगी गुजार सके। मगर जैसे ही शादी होती है, ख्वाब बिखरने लगते हैं और फिर वही लोग कहते पाए जाते हैं, काश हमने अभी निकाह न किया होता। आज के शादीशुदा मर्द कहते हैं कि बीवी नाफरमान हो चुकी है, बातों बातों पर जबान चलाती है, इज्जत परवार करती है। हालांकि एक वक्त था कि यही बीवी खुशियां लेकर आई थी, फरमाबरदार थी, सुकून का जरिया थी। आज वही बीवी दुख देने का सबब बन गई है और बहुत से लोग अपनी बीवियों की वजह से शदीद परेशानी में मुबतला हैं। घर में गुर्बत ने डेरे डाल लिए हैं। हर लम्हा एक नई उलझन, एक नया दुख, एक नया बोझ इंसान पर छाया रहता है। और इस सब की वजह यही है कि जब से हमने अपनी बीवियों के साथ वो आमाल शुरू किए हैं जो अल्लाह ताला को नापसंद है, तब से हमारी जिंदगियों से सुकून उड़ गया है, रिज्क का बहाव रुक गया है, खुशियां खत्म हो गई हैं और घर मुसीबतों के घड़े में गिर चुका है। अब तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी दलदल में धंस चुके हैं जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं। बड़े बड़े पीरों के पास गए, दरवेशों के पास जाकर दुआएं करवाईं, तावीज लेकर आए, मगर यहाँ न किसी की दुआ काम कर रही है, न किसी का दम, न कोई तावीज। क्योंकि जब गुनाह का दरवाजा खुला हो तो बरकत का दरवाजा बंद हो जाता है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने बीवी के अंदर जो सुकून रखा है वो किसी और चीज के अंदर नहीं रखा, चाहे वो चीज दुनिया की कीमती से कीमती दौलत ही क्यों ना हो। अगर बीवी फरमाबरदार हो, शौहर की इज्जत करे, तो वो घर जन्नत का टुकड़ा बन जाता है। यहाँ तक कि हमारे नबी ने फरमाया, बीवी तुम्हारी खेती है, तुम जहाँ से चाहो इस्तेमाल करो। और ये भी कहा गया कि बीवी शौहर का जिस्म है और शौहर बीवी का जिस्म है, यानी दोनों एक दूसरे के लिए मुकम्मल हैं, जुदाई का तसव्वुर भी नहीं। लेकिन कुछ लोग इस तालीम को, इन अल्फाज को, इस रिश्ते की गहराई को समझने के बजाय अपनी नफसानी ख्वाहिशात की हद से बढ़ जाते हैं। बीवी की मोहब्बत को इज्जत के बजाय हवस बना लेते हैं और इसी हवस की पुजारी सोच इंसान को उस मुकाम पर ले जाती है जहां से वापसी मुमकिन नहीं रहती। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा मगर इबरतनाक वाकया सुनाती हूँ। ये वाकया लाहौर शहर का है, जहाँ एक 30 साला नौजवान अचानक बीमार पड़ गया। जाहिर है जब बीमार हुआ तो इलाज भी कराया। पहले छोटे डॉक्टरों के पास गया, फिर बड़े अस्पतालों का रुख किया, महंगे टेस्ट करवाए, बड़ी बड़ी फीसें अदा की, लेकिन शिफा न मिली, बल्कि बीमारी बढ़ती ही गई। डॉक्टरों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये मर्ज है क्या। जिस्म में जरासीम तेजी से फैल रहे थे और वो जरासीम जहर की सूरत इख्तियार करते जा रहे थे। दवाएं दी गईं, इंजेक्शन लगाए गए, ड्रिप्स चढ़ाई गईं, मगर जरासीम मरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक दिन एक सीनियर डॉक्टर उस नौजवान के करीब बैठा और कहा, मुझे सच सच बताओ कि तुमने कौन सा ऐसा काम किया है जो तुम्हारे पेट के अंदर ये महलिक जरासीम घुसाए। नौजवान ने पहले तो नजरें झुकाईं, लेकिन फिर मजबूर होकर बोल ही पड़ा, डॉक्टर साहब,
मेरे अंदर एक बहुत बुरी आदत है, आप चाहें तो उसे गलीज समझें या नापाक। वो आदत ये है कि मैं रोजाना एक नई लड़की को घर बुलाता था और उसके जिस्म के उस नाजुक हिस्से को चूसा करता था जिससे जरासीम पैदा होने का शदीद खतरा होता है। ये मेरा मामूल बन चुका था। अब तक मैं तकरीबन 100 लड़कियों के उस नापाक हिस्से को चूस चुका हूँ और इन सब के साथ गुनाह भी कर चुका हूँ। ये सुनकर डॉक्टर ने आह भरी और कहा, चलो तुमने सच बोल दिया, अब हम इसी बुनियाद पर इलाज करेंगे। मगर अफसोस, इलाज नाकाम रहा। डॉक्टरों ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो नौजवान मौत की दहलीज तक पहुंचकर मर गया। नौजवान तो मर गया, मगर उसके अंदर के जरासीम न मरे। जब उसकी रूह निकली तो लोगों ने देखा कि उसके मुंह से खून बहता जा रहा था और वो खून लगातार बह रहा था। आमतौर पर जब इंसान मर जाता है तो उसका खून रुक जाता है, लेकिन उसके मुंह से खून थमने का नाम नहीं ले रहा था और इस खून में ऐसी शदीद बदबू थी कि इलाके के लोग करीब जाना तो दूर, खिड़की खोलने से भी डरते थे। उसकी लाश को बड़ी मुश्किल से कब्रिस्तान ले जाया गया और कई लोग तो जनाजे में शिरकत भी न कर सके। तदफीन के बाद भी पूरे 1 महीने तक उस बदबू ने पूरे मोहल्ले को लपेट में लिए रखा। लोग दम घुटने की शिकायत करने लगे, घर बंद रखे जाने लगे और आखिरकार एक कारी साहब ने फरमाया, भाइयों, ये जरासीमों की बदबू नहीं, ये गुनाहों की बदबू है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घरों से ये बदबू दूर हो, ये बेबरकती खत्म हो, तो अपने घरों को पाक करो, कुरान की तिलावत को आम करो और उस गुनाह को छोड़ दो जो ये नौजवान करता था। मेरे भाइयों, ये सिर्फ एक वाकया नहीं, ये एक आईना है। अगर हमने अपनी बीवियों के साथ वही आमाल जारी रखे जिन्हें अल्लाह और उसके फरिश्ते नापसंद करते हैं, तो शायद हमारा अंजाम भी उस नौजवान से मुख्तलिफ ना हो। अब भी वक्त है, तौबा कर लो, संभल जाओ और बीवी को सिर्फ मोहब्बत, इज्जत और हलाल दायरे के अंदर ही अपनाओ, वरना तुम्हारी सांस तो बाकी रहेगी, मगर तुम्हारा सुकून, तुम्हारा रिस्क और तुम्हारी नस्ल बर्बाद हो जाएगी। मेरे इस्लामी भाइयों, सब कुछ करना, दुनिया की हर जायज खुशी लेना, निकाह के दायरे में बीवी से मोहब्बत जरूर करना, उसके साथ प्यार भरे लम्हात गुजारना, लेकिन याद रखना, अपनी बीवी की 3 नाजुक चीजों को कभी भूल कर भी न चूसना। अगर ऐसा किया तो याद रखना, तुम्हारा अंजाम भी वैसा ही होगा जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ। इन 3 चीजों में सबसे पहली चीज है बीवी की शर्मगाह। अगर तुमने अपनी बीवी की शर्मगाह को मुंह से चूसना शुरू कर दिया तो समझ लो तुम्हारे साथ भी वही अंजाम हो सकता है जो उस नौजवान के साथ हुआ था जिसका वाकया तुम सुन चुके हो। वो नौजवान उसी गुनाह की वजह से ऐसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो गया जिसका कोई इलाज न मिला और आखिर वो इबरत का निशान बन गया। मेरे भाइयों, याद रखो, बीवी के साथ मोहब्बत करो, मगर हया के साथ, इज्जत के साथ और शरीयत के दायरे में रहकर। बीवी को इज्जत देना ईमान है, मगर उसके जिस्म के साथ वो अमल करना जिन्हें अल्लाह ने नापसंद फरमाया, ये ईमान के कमजोर होने की अलामत है। जो शख्स हया के पर्दे को फाड़ता है वो अपने नसीब के चिराग को खुद बुझा देता है। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं तुम्हें एक दरवेश की हिकायत सुनाना जरूरी समझूंगी। एक बार एक दरवेश एक गांव से गुजरा। वहाँ एक मियाँ बीवी के घर के बाहर चीखों की आवाज आई। दरवेश रुका, देखा कि शौहर गुस्से में बीवी पर चिल्ला रहा है और बीवी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। दरवेश ने दरवाजा खटखटाया। शौहर बाहर आया। दरवेश ने कहा, ऐ इंसान, क्यों चीख रहा है? शौहर बोला, ये औरत मेरी बात नहीं मानती, मेरा दिल नहीं बहलाती, मेरे करीब नहीं आती। दरवेश ने नरम लहजे में कहा, कभी उसके दिल के करीब गया, कभी उसकी आंखों में झांका, कभी उसके दुख को महसूस किया, या सिर्फ जिस्म को जाना, रूह को नहीं? याद रख, जब शौहर बीवी के जिस्म से पहले उसके दिल को छूता है तो अल्लाह उसके घर में सुकून उतारता है, मगर जो शौहर जिस्म को तस्कीन देकर दिल को तोड़ देता है, उसके घर में न बरकत रहती है, न मोहब्बत, न रहमत। शौहर खामोश हो गया। बीवी के आंसू थम गए। दरवेश ने जाते हुए कहा, ऐ इंसान, बीवी अल्लाह की रहमत है, उसके जिस्म में लज्जत तलाश करोगे तो चंद लम्हों की खुशी मिलेगी,
मगर उसके दिल में जगह बना लोगे तो पूरी जिंदगी जन्नत का मजा पाओगे। इंसानी अकल दंग रह गई उस दरवेश की बात सुनकर, क्योंकि उसने सिर्फ एक जुमले में पूरी जिंदगी का फलसफा समझा दिया कि अगर बीवी के जिस्म को मोहब्बत से छुआ जाए तो वो सुकून देती है, लेकिन अगर हवस से छुआ जाए तो वो अजाब बन जाती है। इसलिए मेरे भाइयों, होश के नाखून लो। बीवी के जिस्म से पहले उसके दिल को मोहब्बत दो, उसकी रूह को इज्जत दो, क्योंकि वही औरत जो तुम्हारे लिए सुकून का समंदर बन सकती है। अगर तुमने उसकी हया तोड़ी तो वो तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत दोनों में तूफान बन जाएगी। मेरे इस्लामी भाइयों, यहाँ पर मैं तुम्हें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के एक गुनहगार शख्स की कहानी सुनाती हूँ, जो इंसान की हवस और आजमाइश का ऐसा मंजर है जो दिलों को हिला दे। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम करने जा रहे थे कि रास्ते में एक शख्स नजर आया जो बिल्कुल बरहना हालत में रेत के टीले में छुपा हुआ था। उसने अपने जिस्म पर रेत डाल रखी थी, सिर्फ चेहरा बाहर निकाला हुआ था। जब उसने अल्लाह के नबी को देखा तो अर्ज की, ए मूसा, अल्लाह से जाकर कहना कि मेरे हिस्से का जितना रिस्क है वो सब इकट्ठा दे दे, ताकि मैं आराम से जिंदगी गुजार सकूं, इस इम्तिहान से निकल सकूं। हजरत मूसा ने अल्लाह से अर्ज की तो अल्लाह ने फरमाया, ठीक है, मैं उसके नसीब का सब रिस्क इकट्ठा दे देता हूँ। जब हजरत मूसा वापस आए और उस शख्स को अल्लाह का पैगाम सुनाया तो वो खुशी से निहाल हो गया। कुछ ही दिनों में वो शख्स अमीर बन गया। दौलत, माल, खादिम, गुलाम और नौकरानियां सब कुछ हासिल कर लिया। लेकिन जब दौलत आई तो ईमान रुखसत हो गया, और जब आसाइश आई तो हया मर गई। उसने अपनी दौलत को अय्याशी में उड़ा दिया, खूबसूरत लौंडियों को खरीदा और नफसानी ख्वाहिशात में गर्क हो गया। फिर कुछ वक्त गुजरा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा उसी रास्ते से गुजरे। पूछते पूछते उस शख्स के बारे में खबर मिली कि लोग उसे जंजीरों में बांधकर कोड़े मार रहे हैं। हजरत मूसा हैरान हुए, लोगों से पूछा, उसने आखिर ऐसा क्या किया है? लोगों ने कहा, ए अल्लाह के नबी, उसने अय्याशी की इंतहा कर दी, अपनी लौंडियों को बेहयाई के अड्डे बना दिया, जवान लड़कियों की इज्जतें लूट ली और गुनाहों को फख्र बना लिया। ये सुनकर हजरत मूसा के आंसू बह निकले और फरमाया, देखो, यही होता है जब इंसान अल्लाह से अपने नसीब का रिस्क इकट्ठा मांग लेता है, मगर हया और शुक्र का दामन छोड़ देता है। फिर अल्लाह ने वही फरमाई, ए मूसा, देख लो, जब इंसान को उसकी ख्वाहिश के मुताबिक सब कुछ दे दिया जाए और वो शुक्र के बजाय गुनाह में पड़ जाए, तो मैं उससे वो सब छीन लेता हूँ जो कभी उसका फख्र हुआ करता है। मेरे भाइयों, आज के मर्द भी उसी राह पर चल पड़े हैं। उनके मोबाइलों में फहाशी, जबानों पर गुनाह, नजरों में बेहयाई और दिलों में हवस के बुत बस गए हैं। ये वो जमाना है जहाँ इंसान नमाज में नहीं, औरत के जिस्म में सुकून ढूंढता है। मगर याद रखो, जो शख्स अपनी हवस को माबूद बना ले वो अपने रब को खो देता है, और जब अल्लाह नाराज हो जाए तो न दौलत साथ देती है, न औलाद, न इज्जत। होश के नाखून लो, अपनी बीवी को मोहब्बत दो, गुनाह का जरिया न बनाओ, वरना अंजाम वही होगा जो उस गुनहगार शख्स का हुआ। दुनिया में जिल्लत, कब्र में बदबू और आखिरत में अजाब। मेरे इस्लामी भाइयों, कहते हैं कि जो शख्स किसी भी औरत की या अपनी बीवी की शर्मगाह बार बार चूसने का आदी बन जाता है, उसके जिस्म के अंदर 100 से ज्यादा बीमारियां पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है। इनमें से मैं तुम्हें 10 बहुत बड़ी और खतरनाक बीमारियों के नाम बताती हूँ। नंबर 1, मुंह और गले का कैंसर। नंबर 2, पेट में जहरीले जरासीमों का फैल जाना। नंबर 3, जिगर का सड़ जाना। नंबर 4, दांतों और हड्डियों का गलना। नंबर 5, खून के अंदर बैक्टीरिया का दाखिल होना। नंबर 6, जिनसी कमजोरी और मर्दानगी का खत्म हो जाना। नंबर 7, दिल की शरेयानों में जरासीम का जम जाना। नंबर 8, मादे में जख्म बन जाना। नंबर 9, जिस्म से बदबू का न खत्म होना। और नंबर 10, जिल्द की लाइलाज बीमारियां। ये हैं वो बीमारियां जिनसे कोई नहीं बच सकता अगर बीवी की शर्मगाह को चूसने का गुनाह किया जाए। ये बीमारियां तुम्हारा पीछा करेंगी,
तुम्हें हड्डियों समेत मिट्टी में सुला देंगी, तुम्हारे जिस्म से तफून उठेगा और कब्र में सुकून छिन जाएगा। लिहाजा खुदारा मेरे इस्लामी भाइयों, अल्लाह का खौफ करो, उसके गजब से डरो और उस गुनाह से तौबा करो जो तुम्हें दुनिया में जलील और आखिरत में रुस्वा कर देगा। यहाँ पर मैं अपनी इस्लामी बहनों से भी अर्ज करूंगी, नौजवान तो अपनी जगह, आज की लड़कियां भी इस फितने से पीछे नहीं रही। खास तौर पर कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाली लड़कियां, जिनके माँ बाप अपनी इज्जत समझकर उन्हें तालीम के लिए भेजते हैं, मगर वहाँ क्या हो रहा है।